What is up bros, this is Jay back with another भसड़ू वीडियो भाइयों। और इस भसड़ को मैं कहां से शुरू करूं और किसको पहले गाली बकना शुरू करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो I'll try my best to organize this video as well as I can, but let's jump in from where it all started। तो अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मिस्टर सूर्यकांत जी, उन्होंने जो है यंगस्टर्स को कॉकरोचेस बुला दिया और इसी चीज के ऊपर पूरा बवाल शुरू हुआ है। ऑल्दो द स्टेटमेंट वाज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट मैं फिर भी तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। World may be eligible to become senior. At least you are not entitled. If the High Court makes you senior, we will set aside that. You understand? No other litigation. Just to pursue your senior. Is senior advocate a status to be ornamentally kept at residence, or a recognition for your role and participation in the justice delivery system? I want to read what kind of language he is using on the Facebook. Let people understand. I will going to teach them what is the meaning of the discipline in profession. I have dealt with so many this kind of characters in past. Really sorry if I have hurt you, Lord. There are already parasites in society. You attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter. And भाई I don't see anything wrong with this statement, but इस देश के लोगों को हर चीज स्पून फीड करनी पड़ती है और बेरोजगार इंसान स्पेशली हर चीज पे ऑफेंड होने के लिए 24 घंटा तैयार बैठा रहता है। इंडिया's चीफ जस्टिस called youngsters cockroaches. Here is what happened. A lawyer walked into Supreme Court not to fight for a client but to chase his own senior advocate designation for the third time. CJI Surya Kant did not hold back. Is senior advocate a status to be ornamentally kept at residence or a recognition for your role in the justice delivery system? Then came the remarks that set the whole internet on fire. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. Some become media, some become RTI activists, and they start attacking everyone. The CJI clarified that he meant those entering professions with fake degrees, not India's youth at large. But the phrase had already traveled first generation lawyers, small town advocates, no godfather, no NLU degree, no senior to mentor them. They heard it differently. Proud cockroach started trending. और उसके बाद इंटरनेट पे एक पेज बन जाता है by the name Cockroach Janta Party, which started off as a meme page, as a satire. ये पेज सारे जेनजी की, सारे यूथ की आवाज को एम्पलीफाई करके और ऑफिशियल्स तक पहुंचाना चाह रहा था और उनको एक मैसेज देना चाह रहा था कि जब गलती आपकी है इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम में, तो आप इस तरीके से यूथ की बेइज्जती नहीं कर सकते हो, उनको कॉकरोचेस नहीं बुला सकते हो। और अगर आप बुलाओगे तो अब हम आपको जेनजी की ताकत दिखाते हैं कि जब हम यूनिटी में काम करेंगे तो हम किस तरीके से आपकी सरकार भी हिला सकते हैं। सब बढ़िया चल रहा था, रातों रात इस पेज के मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए और सबको लग रहा था ये एक जेन्युइन ऑर्गेनिक मूवमेंट है, जब तक क्रेडिट लेने के चक्कर में इस पेज के फाउंडर ने बायो में अपना नाम नहीं डाल दिया। सो दिस पेज वाज मेड बाय दिस गाय कॉल्ड अभिजीत दिपके, हु इज अ फॉर्मर आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एंड सोशल मीडिया कैंपेनर। अब ये बात जानने के बाद जब लोगों ने इस आदमी के बारे में सर्च करना शुरू किया और इस बंदे का लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और ट्विटर के एक्स के पुराने पोस्ट निकल के सामने आए, तो पता चला कि भाई ये तो बहुत ही वेल कनेक्टेड है आम आदमी पार्टी के साथ। एंड ही हैज वर्कड विद देयर सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस टीम एज अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट। यानी कि इस तरीके के एडिट्स बनाना, पेजेस बनाना और एक सोशल मीडिया नैरेटिव बिल्ड करना इस इंसान का काम रहा है फॉर आम आदमी पार्टी। नाउ दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स. Cockroach Janta Party founder Abhijit Dipke's post for Aam Aadmi Party Manish Sisodia before leaving for studies in US emerges, no distance will weaken my commitment. यानी कि मैं हमेशा आपका सिपाही रहूंगा। ये रही इन भाई साहब की पोस्ट मनीष सिसोदिया जी के साथ, और ये रहा इनका एक पुराना एक्स का पोस्ट जो कि इनकी प्रोफाइल से अभी उड़ चुका है। बाय द वे ही हैज नॉट ओनली डिलीटेड हिज लिंक्डइन प्रोफाइल और उस प्रोफाइल की डिटेल्स, बट ऑल्सो डिलीटेड अ लॉट ऑफ हिज एक्स के पुराने पोस्ट्स जो कि लोगों ने खोद के आगे लाने शुरू कर दिए थे। बट चीजें छुपाए नहीं छुपती। ये एक्स पे मुझे किसी और के पेज पे मिल गई पोस्ट
And look at this, Abhijit Dipke, 24 August 24. Thank you for everything, M. Shishodia sir. I'm truly grateful for all opportunities you provided me while working with you. Leaving for Boston with your guidance as my compass, no distance will ever weaken my commitment to AAP. Team Manish Shishodia forever. प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये इंसान पास्ट में आम आदमी पार्टी का सपोर्टर रह चुका है। प्रॉब्लम ये थी कि ये पेज जब स्टार्ट हुआ है, इस इंसान ने और इसके कॉकरोच जनता पार्टी वाले पेज ने कहा कि भाई वी स्टैंड विद नो पॉलिटिकल पार्टी, हम अपनी अलग से एक पार्टी बनाएंगे जो कि बस और बस जेनजी की आवाज बनेगी। हम ना ही तो लेफ्ट के साथ हैं और ना ही राइट के साथ हैं। बट टर्न्स आउट इसके लेफ्ट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। अब ऑब्वियसली ये इस इंसान का अकेला कनेक्शन नहीं है, इस इंसान का कनेक्शन टीएमसी की एमपी माहुता मोइत्रा के साथ भी है, जो कि इस पेज को और इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। बाय द वे, वंस अगेन शी इज इन टीएमसी एंड शी इज द सेम वुमन जो आज से कुछ टाइम पहले ये कह रही थी कि बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इंडिया से कहीं ज्यादा है, कोई भी इंडिया में आके रहना नहीं चाहता है और सब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। Who? Tell me one thing. I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India. And yet we have so many illegal immigrants coming in from Bangladesh. But इसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे, ये उस बात को कवर अप करने के लिए कुछ भी बात पेल देंगे, चाहे वो कितनी illogical क्यों ना हो। 11 lakh people, earning professionals who have paid taxes, have left India in the past 3 years. And where did they go? Bangladesh to find employment opportunities, या फिर वो यूएस गए, ऑस्ट्रेलिया गए, बॉस्टन गए। Nobody wants to is looking at India as this land of honey and cream that people want to come and settle here. Please get this out of your head. So now you know what kind of supporters this cockroach जनता पार्टी has और कितने ये न्यूट्रल हैं। Amazingly enough, इनके recent posts पे अखिलेश यादव जी के बहुत सारे comments हैं जो हर बार आके कमेंट्स में लिख के चले जा रहे हैं, आई सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जी ने भी इनके ऊपर एक वीडियो डाला है और इनको सपोर्ट दिखाया है अपना। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल्स छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ना ही तो सर दुनिया में वॉर चल रही है, ना ही इस दुनिया में इन्फ्लेशन नाम की चीज है, और ना ही लोगों की परचेजिंग पावर इन जनरल बढ़ रही है। मतलब इकोनॉमिक्स तो आप खिड़की के बाहर ही फेंक दो, बहुत ही आसान होता है अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना के महंगाई की बातें उनके आगे करके और उनसे वोट लपेटना। I'll let that slide, it's okay। इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? Now दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स दैट आई रियली अग्री विद। नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा मूवमेंट अपना बेस किया था, इसी के ऊपर जो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे उनके इमोशंस को मिल्क करके ये ऊपर आए हैं। बट इनके इस ऊपर आने की स्पीड में बस और बस इमोशनली चार्ज्ड लोगों का, जो कि नीट के एग्जाम के लीक की वजह से परेशान थे, बस वो शामिल नहीं थे। इनके कुछ अजीब सोर्सेज से व्यूज और फॉलोज आ रहे थे, और जब सरकार को ये रियलाइज हुआ तो इनके ट्विटर हैंडल को डाउन कर दिया गया एंड इट्स हेल्ड फॉर रिव्यू राइट नाउ। देन केम इनकी सपोर्टर माहुआ मोइत्रा जी, जिन्होंने ये बोला है कि ये फैशिज्म है। इनका पेज जो है इट्स फ्लैग्ड एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। द सेंटर रिपोर्टेडली डायरेक्टेड एक्स टू विदहोल्ड Cockroach Janata Party account after Intelligence Bureau inputs flagged national security concerns, triggering sharp criticism from opposition leaders including Mahua Moitra and Shashi Tharoor. I don't know if I'm over reading into the situation, but मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है कि ये सब बवाल स्टार्ट हुआ है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद, जब बीजेपी जीत गई है। तो माहुआ मोइत्रा जी ने, जो कि टीएमसी की एमपी हैं, उन्होंने कहा है fascism, not democracy. Our government is so scared of the youth of this country that it can't even bear a virtual online movement. Please realize what the odds we in the opposition fight on daily basis. मैं इनकी बात सुनता अगर opposition बहुत ही clean corruption free party से भरी होती। मैं इनकी बात सुनता अगर मैं भी इस देश में ना रहता और मुझे कांग्रेस के टाइम की हालत पता ना होती। ये विक्टिम कार्ड्स खेल के, ये डिक्टेटरशिप की बात है, ये फियर मॉन्गरिंग करके, ये जेनजी को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में
और क्या चला था आज तक इस चीज के बारे में। इन्होंने बस और बस बीजेपी का राज देखा है और इनको लगता है बीजेपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। बीजेपी को इतने महीने हो गए हैं दिल्ली में, यमुना साफ नहीं हो रही। भाई साफ ना होने के क्या रीजंस है ना, उसके ऊपर बहुत सारे न्यूट्रल चैनल्स ने 1-2 घंटे की वीडियोस बना रखी हैं पूरी। अगर आप जाके देखो, वो एक दिन में गंदी नहीं हुई हैं, वो सालों साल लग के गंदी हुई हैं। तो अचानक से काम हो गए, रातों रात चीजें ठीक हो जाना तो पॉसिबल नहीं है। बट उन लोगों को कौन समझाए बात, हु आर टू कूल फॉर पॉलिटिक्स एंड एब्सोल्युटली न्यूट्रल। उनको लगता है कि भाई मैं क्यों साइड्स लूं। आप साइड्स लोगे व्हेन द वॉर विल कम एट योर डोर स्टेप। ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करना और अपने आप को न्यूट्रल बताना और अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर बताना इज अ प्रिविलेज दैट यू हैव, बिकॉज यू आर नॉट येट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पॉलिटिक्स दैट गोज ऑन अराउंड यू। तो भाई कर लो जब तक ये प्रिविलेज तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज होगा कि वोटिंग बस वोट नहीं है, इट्स अ वॉर टाइम, इट्स अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। ऐसा समझो कि 2 राजा हैं और दोनों की अपनी अपनी सेना है जो कि उनसे अग्री करती हैं। अब किसकी आइडियोलॉजी पे और किसके मेथड्स पे आगे डेवलपमेंट होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय अ वॉर। और इस चीज के लिए लोग हिस्ट्री में लोग एक दूसरे के गले काटते थे, लड़ाइयां होती थी, बंदूकें चलती थी। इट्स जस्ट दैट यू डोंट केयर टू रीड अबाउट दीज थिंग्स एंड आपको समझ नहीं है इन चीजों की, इज व्हाई यू थिंक न्यूट्रलिटी इज समहाउ अ थिंग इन पॉलिटिक्स। न्यूट्रलिटी इन पॉलिटिक्स, व्हाट अ क्रेजी जोक भाई। बट एनीवे बैक टू द वीडियो। इन्होंने अब तक एलिगेशंस लगाए कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी को जो है सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, उनका ट्विटर हैंडल डिलीट कर रही है। इनफैक्ट अभिजीत दिपके ने पोस्ट डाला अपने कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पर और अपनी प्रोफाइल पे कि भाई इन्होंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी डाउन कर दी है, जहां पे हम आपसे पिटिशन साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए। मतलब तुम एक काम करने चले, वो तुमसे हुआ नहीं और उसके लिए भी तुम बहाने मार रहे हो। असलियत क्या है भाई ये देख लो। कॉकरोच जनता पार्टी का एडमिन अजीत दिपके लिखता है कि उसकी साइट को गवर्नमेंट ने टेक डाउन कर दिया। तो आओ देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। तो देखो, गवर्नमेंट यूजुअली जब कोई भी साइट को टेक डाउन करती है तो वो उसके आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देती है। लेकिन इस केस में क्या है कि इनके जो साइट का डीएनएस रिकॉर्ड है वो ही गायब है ही नहीं। तो देखो, जो डीएनएस रिकॉर्ड होता है वो सिर्फ साइट का एक्चुअल ओनर ही चेंज कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, वो सिर्फ आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देती है। I mean, अगर आप डेवलपर हो या फिर आपने कभी भी ऐसे काम किए हैं कुछ, तो आपको पता होगा कि ये वीडियो एकदम सही बात कर रही है। जो ये आदमी बात कर रहा है अभिजीत दिपके, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसने खुद से ही कुछ गड़बड़ की है। इट फील्स लाइक इट्स आम आदमी पार्टी रीब्रांडेड। आई एम नॉट इवन गोइंग टू लाई ब्रो। अब बात आ जाती है इनके एक्स अकाउंट की कि क्यों सरकार ने उस पेज को बंद करवाया इनके, क्यों इट्स फ्लैग्ड एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड व्हाई इट्स हेल्ड फॉर रिव्यू। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके मोस्टली फॉलोअर्स जो हैं वो बांग्लादेश पाकिस्तान से आ रहे हैं। तुम बांग्लादेश का फ्लैग लगा के देख लेना, तुम टर्की का फ्लैग लगा के देख लेना इनके फॉलोअर वाले लिस्ट में जाके, और तुम पाकिस्तान का फ्लैग लगा के देख लेना। इनफैक्ट तुम चाइना का फ्लैग लगा के देख लेना। नाउ व्हाट्स अमेजिंग टू मी इज कि इन देशों के लोग इंडिया के लिए इतना कंसर्न्ड क्यों है। इनका क्या लेना देना इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स से, इंडिया की खराब हालत से। क्या पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश को इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि भाई इंडिया बर्बाद हो रहा है, सरकार इतनी खराब है कि अंदर ही अंदर वो देश को खोखला करती जा रही है? क्या यही नहीं चाहते ये 3 देश? बट नहीं भाई, कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पे ऐसा नहीं है भाई। इन देश के लोग भी चाहते हैं भाई इंडिया में एक मूवमेंट आए जिससे इंडिया तरक्की करे, इंडिया ग्रो करे। और ये एक बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट है इस पेज की कि इन्होंने इस तरीके से यूनाइट कर दिया है 3 देशों को जो कि भारत को 3 डायरेक्शन से अटैक करने की कोशिश करते हैं। Cockroaches are hiding in countless buildings, hotel rooms and restaurant kitchens. They are everywhere, technically in every continent except Antarctica. There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration. The German cockroach. German cockroaches originated in South Asia. Global trade expanded in the 19th and 20th centuries, so cockroaches hid on trains and automobiles. Pardon the pun, but they even travel roach in airplanes. And slowly they colonize the world. Which cockroaches are pests after all, and the sworn enemies of humans. So that's the cockroach survival. By the way,
ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है ना, जो कि इन भाई साहब ने अपने पेज पे डाला है, मैं लिटरली अभी के अभी अपने YouTube स्टैट्स का स्क्रीनशॉट लेता हूं, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट क्लिक करूंगा और उसके बाद सारे डिटेल जो हैं चेंज कर दूंगा अपने पेज के, और तुम उसके बाद ये सोचते रह जाओगे कि अरे भाई, ये भाई के सारे व्यूज यूएसए से क्यों आ रहे हैं, यूएसए में इतनी हिंदी बोलने वाली जनता। क्योंकि भाई लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता, और स्पेशली इनके फॉलोअर्स को, भाई इनके फॉलोअर्स को कैसे ही पता होंगी ये टेक्निकलिटीज, जिनको बेसिक चीजें समझाने के लिए भी हलवा बना के भी मुंह में डालना पड़ता है चम्मच से। भाई मैं बता रहा हूं, देश का IQ जो है ना, एवरेज IQ, वो लो होने के रीजंस हैं, और वो दिख रहे हैं क्लियरली। Survival guide. Keep calm, be persistent, try to be sociable and build resistance to hurdles. Basically, adapt like an ace. Also have a cool rumor about yourself. That last bit cannot hurt. Most world leaders know. Need to stand with Kashmir today, it's Kashmir tomorrow, it can be your state. By the way, ये आर्टिकल 370 के टाइम की पोस्ट्स हैं इनकी। बेवकूफ लोगों की ना एक पहचान होती है कि जब भी वो तुमसे आर्ग्यू कर रहे हैं ना, उनको बोलने दो, आराम से बैठो, उनकी पूरी पूरी बात सुनते रहो और उनको काम करते देखते रहो उनका। थोड़ी देर में वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देंगे और अपनी ही बैंड बजा देंगे। लाइक दिस होल थिंग वेंट फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल टू बीजेपी का पेज अनफॉलो कर दो, मोदी जी को अनफॉलो कर दो। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अरे भाई, वो नीट के स्कैम का क्या करना है? हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अरे भाई, वो इंडिया की सड़कों में गड्ढे बहुत हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अरे भाई, वो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो आपने बात चलाई थी, उसको बैटल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज हैं आपके पास? हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अरे भाई, वो लैक ऑफ सिविक सेंस का इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस लाने के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। भाई, हमारे इंडिया के स्टेट्स में कुछ में बहुत ज्यादा नशा हो रहा है, तो आपको पता ही होगा वो कौन से स्टेट है, तो उसको कॉम्बैट कर। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। भाई, वो मेरे घर के बाहर कुत्ते की टट्टी पड़ी हुई है, उसको। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम। अरे मेरे भाई, तू इतना ही न्यूट्रल है तो मुझे एक बात बता दे कि तू बस बीजेपी को ही क्यों अनफॉलो करवा रहा है? तेरे में हिम्मत है तो बोल कांग्रेस को अनफॉलो करो, तेरे में हिम्मत है तो बोल आम आदमी पार्टी को अनफॉलो करो। भाई, सारी ये पार्टियों को अनफॉलो करो। इन सबको एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि जेनजी बेवकूफ नहीं है, जेनजी अपनी आवाज उठाएगी, वो देश हित की बात करेगी। उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी पार्टी से, चाहे वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करती हो, चाहे वो सिख्स को सपोर्ट करती हो, चाहे वो हिंदुओं को सपोर्ट करती हो, चाहे वो साला जादू के प्लेनेट के लोगों को सपोर्ट करती हो। हमें बस और बस इस देश की तरक्की से मतलब है। तो तूने बस स्पेसिफिकली बीजेपी को अनफॉलो कर दो क्यों बोला है? और उसके बाद ये आदमी आके इंटरनेट पे फ्लेक्स कर रहा है कि भाई देखो, मेरे बीजेपी से फॉलोअर ज्यादा हो गए हैं, यानी कि हम बीजेपी से ज्यादा बड़ी पार्टी हो गए हैं। अब कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर पुनीत सुपरस्टार के हैं, प्रियंका गांधी से ज्यादा फॉलोअर राखी सावंत के हैं। शी इज लिटरली दी ओनली वुमन जो मोदी जी पर घटिया से घटिया जोक मार के भी खुले में घूम रही है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। ज्यादा फॉलोअर नंबर होने से अगर लोग इलेक्शन जीत पा रहे होते और सरकारें चल रही होती है ना, तो ओची बदमाश एजाज खान इतनी बुरी तरह ना हारता इलेक्शनों में। जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। और अगर फॉलोअर नंबर ही सब कुछ होते तो एलविश भाई, जन्नत, जुबैर, UK 07 बदमौस और मेरी फेवरेट द रेड लेवल किड मिलके सरकार चला रहे होते। अब सोचने की बात ये है, जिस आदमी से बिना फंबल मारे कैमरा पे नहीं बोला जा रहा, जो अपना 5 लाइन का मैनिफेस्टो बिना फंबल मारे बोल नहीं पा रहा है, उस आदमी के पास इतनी प्रमोशन करने के, इतने फॉलोअर खरीदने के पैसे कहां से आ रहे हैं? I'm sorry for my previous video because now I fully support Cockroach Janta Party. It is the only party which is so international that it has millions of followers from Pakistan and Bangladesh. The real patriots that always want best for India. Cockroach Janta Party is so financially honest that they even have money to promote their Instagram on pirated video sites. The prime cockroach supports क्लासिक PR टैक्टिक्स हैं ये, व्यूज बढ़ाने के, क्लिक्स बढ़ाने के। पायरेट वीडियो या मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे खुद को प्रमोट करने का, अपनी मूवमेंट को प्रमोट करने का पैसा कहां से आ रहा है भाई साहब आपके पास? क्योंकि कहने को तो आप न्यूट्रल हो, पर लेफ्ट की सारी पार्टियों के साथ आप कनेक्शन में हो इस टाइम पे। 80% reservation even when he lives in a backwards country that still supports merit. They are the only party that has realized the real problem in India is not roads, cost of living or taxes, but BJP's social media page, and unfollowing it can solve everything. So if you don't support this party, 80% reservation in private sector by the way, ये है इनकी सोच। आपका स्किल, आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत, आप भाड़ में जाओ भाई।
80% रिजर्वेशन चाहिए हमें प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। तो ये है तुम्हारे रेवोल्यूशनरी जिनको तुम फॉलो करके ये सोच रहे हो कि ये देश चला देंगे। डर पता है क्या है? 7 मिलियन हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिलियन बचा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हैं इंस्टाग्राम। मुझे लिटरली हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर। इनको लगता है कि ये बीजेपी को सोशल मीडिया पे सरपास करने जा रहे हैं, उस चीज का डर है इसलिए इनको डिफेम किया जा रहा है। अरे भैया, सोशल मीडिया से, उनके फॉलोअर्स से अगर दुनिया चलती, देश चलते, तो आज से पहले ये जो टिकटॉक के छपरी है ना, वो इस देश को चला रहे होते। उनके फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा, आज भी उनसे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है अभी भी तुम्हारे सोशल मीडिया पे। तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सोशल मीडिया पे। ध्रुव राठी के भी बहुत फॉलोअर्स हैं, है ना। ये हम सत्ता पलट देंगे, बदलाव ले आएंगे, क्रांति ला देंगे, नहीं होता ऐसा। कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड? तो क्या हो गया अगर वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड था पहले, है ना। क्योंकि तुमने तो 20 साल लगाया ना इसको इवोल्व करने में। कल 4-5 दिन पहले तुमने ये पेज बनाया है और तुम ऐसी ऐसी बात कर रहे हो। मतलब जो इंसान कल तक एक पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए काम कर रहा था, वो अब बायो को चेंज करके अब यूथ को चलाएगा, यूथ को समझाएगा कि क्या करना है, रिवोल्यूशन लेके आएगा इस देश में। वो भी खुद बाहर बैठे हैं जबकि सारे। तो भूलो मत, ये इंसान फ्लैग था 2019 में, एनएसए यूएपी लगने तक की बात आ गई थी इसके ऊपर। सेपरेटिस्ट वाली आइडियोलॉजी कैरी करते हैं ये लोग, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो। ऑल्दो जो एफआईआर इस बंदे पे हुई थी वो कोई पक्की एफआईआर नहीं थी, वो बस एक सिविलियन कंप्लेंट थी। बट इस इंसान के ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं कि भाई इसको आईएसआई से फंडिंग मिल रही है कश्मीर को इंडिया से अलग करने का नैरेटिव चलाने के लिए। ये आदमी सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट बोल चुका है, ये आर्टिकल 370 के अगेंस्ट बोल चुका है। अर्बन नक्सल गैंग एंड ओल्ड एंटी सीएए एंड एनआरसी स्पीच ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दिपके इज गोइंग वायरल अगेन अक्रॉस सोशल मीडिया। ये सुन लो भाई। तो मोदी कौन था मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? एनआरसी करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। नरेंद्र मोदी को बता दो, चाहे जितनी हड्डियां तोड़ दो लेकिन ये देश नहीं तोड़ सकते। आखिरी बात ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब तुम कहोगे कि भाई इस चीज में तो कुछ गलत है ही नहीं है, तो एकदम सही कह रहा है। पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्यों सरकार आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है, ये प्रूव करने के लिए कि आप यहीं के सिटीजन हो और कहीं बाहर से नहीं आए हो। क्या नाम है आपका? सबीना बेगम। सबीना बेगम। कहाँ काम करती हो? यहीं पे कबाड़ा काम। कहाँ की रहने वाली है? आसाम के। कब आई? ये तो मेरा मम्मी लाया, हमको पता नहीं। मतलब 5 साल पहले आई, 7 साल पहले आई, कब आई? मेरे को पता नहीं, हमें छोटे में आ रखा। इसको यही नहीं पता कि इसको यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया। अभी तो तुम आगे सुनो, इसको अपनी माँ का नाम भी नहीं पता भाई जो इसको लेके आई है। नहीं, आपको जिला नहीं पता है? आप आसाम की कहाँ की रहने वाली हैं? गुवाहाटी में रहते हो, वो सबके बारे में इतना मेरे को पता नहीं, मैं गया नहीं। क्या आपकी कौन सी भाषा है? बांग्ला है, आसामीज है? बांग्ला भाषा। तो यहाँ जो आसाम के रहने वाले लोग हैं वो बांग्ला बोलते हैं, ये कौन सा गणित है? की मैंने होश करा मिले को हम भाषा ऐसे को। बचपन से जो असम में रह रहा है उसकी भाषा बांग्ला कैसे हो सकती है, मुझे तो ये बता दो भाई। बांग्लादेशी कौन है आपके बीच में? ऐसे तो बांग्लादेशी कौन है? फिर तो हम तो आपको बांग्लादेशी कह सकते हैं ना। आप आसाम की रहने वाली, जिले का नाम आपको पता नहीं है, मम्मी आपको लेकर आई, आप कह रही है बांग्ला में आप बात कर रही हैं, आसामी से आपका कोई लेना देना नहीं है। असम के बारे में कुछ जानती है? मैं गया नहीं ना घूमने के लिए। हाँ। आधार कार्ड इनका बना हुआ है, जिला इसमें लिखा है अयनलाक हुक, चंदमम्मा, कलगाछी, बारपेटा। आधार कार्ड बना हुआ है भाई, आधार कार्ड बना हुआ है, वाह। तो आपको पता नहीं है आप कौन सी जिले की हैं? नहीं। और आपकी माँ? मेरी माँ सराय में रहती है। सराय में? हाँ, बगल में। तो आप लोग कभी आसाम नहीं गए? तो गए तो पता क्यों नहीं है? गए तब पता होना चाहिए ना आसाम का कौन सा जिला है। गया। भूल गई? कुछ छिपा रही हो? नहीं छुपा रहा, मेरा मम्मी को पता है। अच्छा। नहीं भैया नहीं। और इसमें नाम वगैरह है? पापा का नाम क्या है आपके? आइनल हक। आइनल हक। आइनल हक। हाँ। और मम्मी का नाम? मम्मी का नाम पता नहीं। माँ का नाम नहीं पता, जिले। ब्रो मम्मी का नाम नहीं पता। अब तक पूरी स्टोरी ये थी कि मम्मी मुझे बहुत बचपन में लेके आई थी, मुझे कुछ नहीं पता, सब मम्मी को पता। मतलब मम्मी के भरोसे मेरी जिंदगी चल रही है। अब मम्मी का नाम क्या है यही नहीं पता भाई। बहुत बढ़िया। का नाम नहीं पता, मम्मी का नाम
एक होता है आपको जिले का नाम नहीं पता, मैं मान सकता हूँ, ठीक है, गरीब आदमी है, रोज की सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है उसको, उसके पास टाइम है कि वो भारत का मैप याद करेगा या ये याद करेगा मैं कौन से जिले से हूँ, ये सब ठीक है, मैंने मान लिया, कोई बहुत मंदबुद्धि हो सकता है। अपनी माँ का नाम नहीं पता भाई, क्या भाई चील गिद्ध कोई छोड़ के गया था क्या तुम्हें इस लोकेशन में? ये मम्मी का नाम कैसे नहीं पता भाई? मम्मी का नाम ही तो इतना पता नहीं, मैं भूल। पापा का नाम? पापा का नाम याद है, अनिल हक। और पति का नाम? अविनाश। अविनाश? ये क्या गढ़ी थे भाई, इनका तो सब पैतरा उल्टा लग रहा है हमको। पति का नाम अविनाश, माँ का नाम आपको मालूम नहीं, पिता का नाम आप गलत बता रही हैं, जिले का नाम आपका पता नहीं है। अभी कुछ दिनों में आ जाएंगे भाई न्यूट्रल यूट्यूबर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं भाइयों किस तरीके से एक डिमेंशिया वाली औरत को, ये औरत को क्लियरली अर्ली अल्जाइमर्स के और डिमेंशिया के साइंस दिख रहे हैं, पर ये चाटुकार पत्रकार को देखो किस तरीके से इनको प्रताड़ित कर रहा है। Kashmir neither belongs to India, Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। Supreme Court this Monday morning denied bail to Delhi riots case, Supreme Court denies bail to Umair Khalid. Sharjeel Imam grants relief to 5 co-accused. Imam and Umar Khalid. मामला फरवरी 2020 के एंटी-CAA NRC प्रोटेस्ट का है that turned violent. 53 people had died and over 700 people were injured in those riots. कोर्ट के मुताबिक ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड्स थे और ये गिल्ट प्रूव होती है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स जिससे एक्टिवली इन्होंने राइट्स कोऑर्डिनेट और प्लान किए थे। ये वही क्रांतिकारी हैं जो 2016 जेएनयू में पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है, तो वहाँ पे जो एमपीज हैं उन पे अटैक करना है, और पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा। Against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. I think you misuse your freedom of expression. You are more dangerous to this country than Maoists. Hindus should chant Allahu Akbar. Cutting Assam off India is our duty. गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाओ। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाओ। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े। तो ये आदमी आज से 5 से 6 साल पहले उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था जो कि कश्मीर को और असम को इंडिया से काटने की बात करते हैं, अलग करने की बात करते हैं। ये है आपका न्यूट्रल रेवोल्यूशनरी। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के। Umair Khalid is in jail since last 5 years without trial. Why is he being treated differently? Because जो इंसान देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है ना, वो नॉर्मल क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं हो सकता। He is a threat to national security. Obviously उसको जेल में रखा हुआ था। ये है भाई, एक तो मुझे इस रैप से इतनी ज़्यादा चिढ़ है ना, जब से ये पूरा आम आदमी पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ था और रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, मुझे चिढ़ हो गई है इस आज़ादी वाले स्लोगन और गाने से। अगर कोई ये इस्तेमाल कर रहा ना अपनी रील में, समझ लो भाई वो मंदबुद्धि है। इस चीज़ में भी इनको डिफेंड करने वाले बहुत सारे लिबरल लोग और अच्छे दिल के लोग इकट्ठे हो गए थे, जो ये कह रहे थे कि भाई इनकी वीडियोज़ को एडिट करके और इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। Umar Khalid's life because they believe that he's some sort of anti-national, which is a complete load of nonsense. Because the video that they rely on for this belief has been proved to be doctored. I mean, there is evidence in public that that video was doctored. That voices were inserted on it, slogans were inserted on it. So therefore, for whatever it's worth, Umar Khalid is a citizen with as much right as you or I to have an opinion. And I don't understand why anyone would run out and shoot at him. Anything cultural when people say अफजल तुम हमारे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, which means अफजल you are fighting for us by attacking the parliament. Second, अफजल गुरु द मैन बिहाइंड पार्लियामेंट्री अटैक्स। जस्ट इन केस तुमने वो डिटेल मिस कर दी हो, ही वाज द वन बिहाइंड इट। it is nothing cultural when a group of people और यही लोग थे जो मुझे याद है जेएनयू में पोस्टर्स लेके खड़े हुए थे जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु करके, जब उसको सरकार ने फांसी लगा दी थी। और उसके बाद कुछ स्लोगन्स हैं
जो मुझे कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, जिसमें स्लोगन्स चिल्लाए जा रहे थे, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। Go and say India go back, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, There you go. which means we will keep fighting a battle till we destroy India. I don't see him denying this. I don't see him denying this. Honest इंसान होता ना, एकदम से बोलता कि भाई ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। I never said all of that. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. You misuse your freedom of expression, and then you say that this is cultural. इन लोग को सपोर्ट करता था ये। बट वंस अगेन इसमें जो सबसे फिशी चीज थी वो ये थी कि भाई इसके फॉलोअर बहुत अजीब जगहों से आ रहे हैं। तो आओ उस चीज को भी थोड़ा सा समझते हैं कि पर्टिकुलरली बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह से ही क्यों ये फॉलोअर्स आ रहे हैं। Expected, every major anti-India movement since 2014 has these three nations at its core. The Cockroach Janta Party claims to be an organic grassroots uprising of Indian youth. They boast about crossing 15 million followers on Instagram in a matter of days, surpassing legacy parties like the BJP and the Congress. But now it's clear why this happened. This isn't a domestic youth wave. It is a manufactured digital toolkit heavily reliant on networks based in Pakistan, Bangladesh, and Turkey. When you look at the cybersecurity data of how these anti-establishment movements are amplified, this exact trio always surfaces. Here is exactly how their digital machinery works. First, Bangladesh, the cyber sweatshops. In the digital underworld, Bangladesh is infamous for hosting massive click farms. A political PR agency can literally buy thousands of Instagram followers for just a few dollars. When the CJP needed to jump from 0 to 15 million overnight to create the illusion of a massive wave, they bought the cheapest bulk packages available, which almost always trace back to servers in Dhaka. Second, Pakistan, the narrative architect. While Bangladesh provides the cheap digital labor, Pakistan provides the strategy. Their state apparatus runs a dedicated cyber division focused entirely on exploiting Indian fault lines. They don't start the protests, they hijack them. The moment the CJP trended, Pakistani bot networks flooded the hashtags to artificially inflate the outrage, making the movement look infinitely larger than it actually is to demoralize the Indian public. और ये पहले कई बार हो चुका है। एक्स के ट्विटर के ट्रेंड्स को मैनिपुलेट करना, हैशटैग्स को आर्टिफिशियली बूस्ट करके ऊपर लाना बहुत आसान है, बहुत आसान। We've seen it happen before as well. बट लोग अपना दिमाग ही नहीं चलाना चाहते। जेनजी को लगता है कि भाई हम बूमर लोगों से ज्यादा समझदार हैं। We're not the same as boomers. You are. तुम बस डिफरेंट पैकेजिंग में बूमर्स ही हो चुके हो। वो लोग जो उनको टीवी पे दिखते थे या जो उनको पॉलिटिशियंस पसंद आते थे वो उनको वर्शिप करने लग जाते थे, वो उनके पीछे पागल हो जाते थे और उनको अपना अनडाइंग सपोर्ट देते थे। और तुम लोग ऐसे बेवकूफ बनते हो डिजिटल मूवमेंट्स को देख के और इन्फ्लुएंसर्स को देख के। द ओनली डिफरेंस इज द काइंड ऑफ मीडिया दैट यू गाइस कंज्यूम। और कोई डिफरेंस नहीं है सोच में, क्योंकि अगर अकल होती, कुछ डेवलपमेंट होती यहाँ पे, तो तुम लोग क्वेश्चन करते इस चीज को, तुम जानने की कोशिश करते ये इंसान कौन है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और ओवरनाइट ये सब क्यों फटने लग गया एकदम से इतना ज्यादा। बट नहीं भाई, हमें क्या मतलब है, हम तो न्यूट्रल कूल लोग हैं भाई। वी डोंट कंसर्न आवरसेल्व्स विद दिस पॉलिटिक्स बुलशिट। Third, Turkey, the global amplifier. Turkey provides the high-tier algorithmic boost. Over the last decade, their state-backed digital networks have consistently aligned with Pakistan. While Pakistani bots flood the zone with sheer volume, Turkish networks pushed these anti-India hashtags onto global trending lists, creating an international spectacle out of domestic friction. As expected,
every major. तो नाउ यू नो क्यों ये 3 जगहों के झंडे जैसे ही आप इनके फॉलोअर लिस्ट में लगाओगे तो आपको लाइन से इतने सारे लोग दिखेंगे, क्यों इतनी सारी जनता वहां से इनके पेज पे एक्टिव हो रही है. बाय द वे, दिस पेज इज कॉल्ड द नॉलेज रिपब्लिक एंड आई एम गोइंग टू वॉच अ फ्यू रील्स मोर ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम हिम बिकॉज इट्स द ओनली पेज ऑन इंस्टाग्राम दैट आई हैव फाउंड जो कि इस तरीके से इजी टर्म्स में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है. The Cockroach Janta Party is an organic youth rebellion. You are being played by a foreign geopolitical playbook. Let's look at the actual geographical data behind their Instagram followers. A staggering 49% of their entire network is sitting right across the border in Pakistan. Another 14% is routed through the USA, and 14% is pumped in from Bangladesh. The actual Indian youth? 9%. This is a weaponized digital operation. And if you want to know why, look at the geopolitics. This is the exact same trend manufacturing playbook that was just used to spark massive youth unrest and regime change in Bangladesh and fuel protests in Nepal. We have seen the fingerprints of foreign interference using massive bot farms to hijack local algorithms, manufacture fake outrage, and manipulate the youth into destabilizing their own countries. Now, they are deploying that exact same toolkit on India. But what about the CJP founder? He is desperately trying to save his narrative by posting screenshots of his Meta dashboard, claiming a 94% Indian audience. Do not fall for it. Any digital... Dhruv Rathi did the same thing during Pahalgam attack जब उसने इंडिया के सपोर्ट में वीडियो डाली थी और उसका पूरा कमेंट सेक्शन गालियों से भर गया था, पूरा कमेंट सेक्शन हेट कमेंट से भर गया था. देयर इज अ वीडियो ऑन माय चैनल ऑन दिस. उसका शायद थंबनेल भी यही है, ध्रुव राठी गेटिंग हेट और सम शिट. तो भाई ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम सबको पता है इनका ऑडियंस कहां से आ रहा है भाई. Strategist will tell you a dashboard screenshot means absolutely nothing. There you go. First, it takes literally 2 seconds to use a browser's inspect element tool to change 49% Pakistan into 94% India before like hitting. You can change any damn text on your screen using the inspect element. ये हम बचपन में कर रहे थे भाई, 6ठी 7वीं क्लास में फालतू की हरकतें कर रहे थे हम. फेसबुक कमेंट्स को चेंज करके मीम्स बना रहे थे. हाउ डू पीपल नॉट नो अबाउट दिस? हाउ डज जेन जी नॉट नो अबाउट दिस जो बड़े हुए हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ? कम ऑन डूड. Screenshot. But what if he screen records it? Still fake. Custom HTML extensions allow you to hard code those fake numbers into your browser. So even when you hit refresh on camera, the lie stays on the screen. Furthermore, it's the same thing as, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने कभी uTorrent यूज किया है तो uTorrent का जो स्पीड होता है ना, तुम उसको मैनिपुलेट कर सकते हो. वो बस नंबर ज्यादा दिखेगा, स्पीड एक्चुअली नहीं बढ़ती है. तो एक टाइम पे वीडियोस बना करते थे यूट्यूब पे कि आप चीट इंजन यूज करके एक ही सेकंड में अपने इंटरनेट की स्पीड 1 Mbps कर सकते हो. ब्रो, 1 Mbps to 2 Mbps speed used to be a lot back in those BSNL landline days. तुम सोच नहीं सकते, मेरा कंप्यूटर 7 दिन हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स ऑन रहते थे जस्ट टू डाउनलोड अ 10 GB डैम गेम. ठीक है, इट वॉज नॉट ईजी टू बी अ गेमर इन दोज टाइम्स. बट आप चीट इंजन में जाके यूटॉरेंट का सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करके और उसमें आप एग्जैक्ट नंबर जो लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है उसको चेंज करके बूस्ट कर सकते थे. तो अब टॉरेंट में वो ज्यादा स्पीड दिखानी शुरू हो गया है. बट इन रियलिटी अभी भी 150 KB स्पीड ही आ रही है. तो भाई ये काम हम किया करते थे, पूरा YouTube ऐसे घटिया फ्रॉड ट्यूटोरियल से भरा हुआ था. बट आज के बच्चों को पता ही नहीं है भाई, शायद नहीं पता क्योंकि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता. तुम ऑन करते हो 5G, 10 Mbps की स्पीड आ रही है, तो यू डोंट इवन नो कितना आसान है किसी को ऐसे बेवकूफ बना देना बस और बस एक स्क्रीनशॉट से. Advanced bot sellers mask Pakistani and Bangladeshi click farms behind Indian residential VPNs. The traffic looks domestic, tricking Meta's internal dashboard entirely. The government didn't act on a political whim. The Ministry of IT... By the way, ये जो तुम वीडियोस देखते हो ना कि
इतना रेवेन्यू मैंने जनरेट कर लिया इस पर्टिकुलर वीडियो से, और ऐसा चैनल चला के, फेसलेस एआई चैनल चला के, ये देखो स्क्रीनशॉट। भाई वो स्क्रीनशॉट में नंबर इतना इजीली मैनिपुलेट हो सकता है ना। लाइक वो क्या करते हैं, वो अपना लेजिटिमेसी प्रूव करने के लिए ना आपको स्क्रॉल अप डाउन करके दिखाएंगे कि देखो भाई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं रियल स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। भाई उसको चेंज किया जा सकता है। वो $6 का $60 कर देगा और 60 का 60,000 कर देगा। इट डज नॉट इवन मैटर। और तुम वो ट्यूटोरियल देख के 4 स्टूपिड एआई टूल्स डाउनलोड करके और लगे रहोगे ये सोच के कि भाई मेरे भी कल इतने पैसे बन जाएंगे। कभी नहीं बनने वाले। द फैक्ट कि उस चीज के ऊपर इतने ट्यूटोरियल्स बन रहे हैं कि पैसे कैसे कमाई ये करके, इज प्रूफ कि उसके बारे में बताना धंधा है, वो करना धंधा नहीं है। तो बी वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग ऑन YouTube. He utilized Section 69A of the IT Act. When intelligence agencies track massive surges of foreign IP addresses acting as retweet farms to artificially trend hashtags, they don't see a harmless meme page. They see a highly coordinated psychological operation. The Indian government didn't ban them over political satire. They banned them because this is an algorithmic invasion. Follow Knowledge Republic for more videos. Think the cockroach janta. तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सरकार फैशिस्ट है और वो दूसरे की आवाज को दबा रही है और डेमोक्रेसी इस देश में जोक है, तो भाई उनको या तो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है इन चीजों का, या फिर वो जानबूझ के आपको बहुत ही सेलेक्टिव फैक्ट्स दे रहे हैं जिससे आप भड़के रहो और इस मूवमेंट से जुड़े रहो। Attire loophole has officially been closed. Amit Shah and the Ministry of Home Affairs just dropped the hammer on the cockroach Janta Party, and they are no longer treating this as a harmless meme page. It is now officially a national security investigation. If you think this is just about banning a Twitter account, you do not understand how the Indian state operates. The MHA has officially written to the Ministry of Electronics and Information Technology. This isn't a request to hit the block button. This is the legal activation of a massive back-end data sweep. The government is currently extracting IP addresses, device IDs, linked phone numbers, and funding trails to unmask the entire network. And they have made their target explicitly clear. Look at the official MHA directive. The very first point under investigation is the rebranding of a domestic political party. Just like everyone is suspecting कि this is just आम आदमी party with a different cover this time. क्योंकि exactly वैसे ही edits, वही सेम घिसा पिटा आजादी वाला गाना, वही टैक्टिक्स की हमारा पेज डिलीट हो गया, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारा पिटिशन उड़ गया। जैसे ही काम करने का टाइम आया उसी टाइम सारी मुसीबत आ पड़ी भाई इनके ऊपर, सारी दुनिया इनके पीछे पड़ गई। This is a direct warning shot. The Home Ministry is legally establishing that this was never an organic youth movement. It is a coordinated, weaponized proxy IT cell operating as a shadow wing of an established political party to evade legal accountability. But the real kill shot... See, how you evade legal accountability is कि भाई ये मूवमेंट तो एक बॉस्टन में बैठे बंदे ने चलाया था, हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है इससे। वी तो जस्ट लाइक द मूवमेंट सो वी स्टार्टेड सपोर्टिंग इट, अदरवाइज वी हैड नथिंग टू डू विद ऑल ऑफ दिस। बाय द वे द सेम थिंग वाज डन बाय ध्रुव राठी वंस फॉर आम आदमी पार्टी। सो अगर पैटर्न रिकग्निशन स्किल आपका थोड़ा भी एग्जिस्ट करता है तो आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। इज द थर्ड पॉइंट, द फॉरेन एंगल. By officially bringing a foreign angle under the scanner of India's security forces, Amit Shah has elevated a domestic digital street fight into a transnational intelligence operation. They are actively tracking how this trend crossed borders, searching for the foreign bot networks and offshore funding that artificially amplified this hashtag. This isn't a civil defamation case anymore. The moment security forces and foreign subversion are involved, the entire legal playbook changes. The digital street fight is over. The state crackdown has begun.
Follow Knowledge Republic for more videos. तो भाई ये है आपकी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि अजीब वेबसाइट्स पे और इलीगल मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे समहाउ अपने आप को प्रमोट कर पा रही है, अपनी इस पूरी मूवमेंट को और पेज को प्रमोट कर पा रही है। रातों रात उनके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो ज्यादातर बढ़ रहे हैं बांग्लादेश, टर्की, चाइना, पाकिस्तान से। इनके पास अपने आप को सपोर्ट करने के लिए फॉल्स क्लेम्स के अलावा कुछ नहीं है। और जब काम करने की बारी आई है तो काम के नाम पे इन्होंने मिलके एक रैंडम दीवार पे ग्राफिटी बनवा दिया भाई, कॉकरोच जनता पार्टी की एक एडिट बना दिया है इन्होंने मेलोडी गाने पे मोदी जी के। और उसके अलावा इन्होंने एक पिटिशन साइन करवाई थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगते हुए, जो कि वेबसाइट इन्होंने खुद ही हटा दी है। और उसमें भी इन्होंने सरकार का नाम लगा दिया कि भाई सरकार ने उड़वा दी हमारी वेबसाइट। थैंक यू भाई साहब, आपने ग्राफिटी ना बनवाई होती अपने नाम की तो इस देश का उद्धार कैसे होता, कैसे सारे प्रॉब्लम्स ठीक होते इस देश के। उसके अलावा जो इनको अब तक सपोर्ट कर रहे थे और फिर उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं, इनका तो पूरा मुद्दा ये है कि बीजेपी के अगेंस्ट बोलो और बीजेपी के पेजेस को अनफॉलो करवा दो, उन्होंने फिर इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। और उसके बाद उन लोगों को आने शुरू हुए हैं थ्रेट्स। ये देख लो भाई, तेलचट्टा जनता पार्टी जब तक नीट के बच्चों के लिए आवाज उठा रही थी तब तक मैंने सपोर्ट करी थी भाई, उनके लिए जस्टिस होना चाहिए, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद मैंने देखा ये तो बोले अगर तुम एक तेलचट्टे हो तो बीजेपी को अनफॉलो कर दो, फिर मुझे समझ आ गया कि इनका क्या प्रोपेगेंडा है। तो मैं तो नेशनलिस्ट पोस्ट डालती हूँ, मैंने इनके लिए भी एक पोस्ट डाली और इनके प्रो विमेन पार्टी के सपोर्टर्स मुझे आके 50% जो है ये रिजर्वेशन मांग रहे थे औरतों के लिए अपने मैनिफेस्टो में। 50% दे रही है और इतनी बढ़िया बढ़िया गाली दे। ये तेलचट्टे क्या बोलते हैं कि इंडिया एक गटर है, उस देश को गटर बोलते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, जिसने मल्टीपल इन्वेजन साइट थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जलाई गई, 10 मिलियंस ऑफ हिंदूज को मैसेकर किया गया, गुरुकुल। आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल फॉरगेट कि हमारे देश को कितने लोगों ने कितनी बार इन्वेड किया है, खत्म कर गए हमारे देश को हर बार। एंड येट हम अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। अगर इतने इन्वेजन्स ना हुए तो इंडिया के लिए क्या तरक्की करना बाकी देशों की तरह आसान ना होता। बट भाई सबसे ज्यादा झेला इस देश ने। I've said this before and I'll say it again, लोग पीस टाइम की वजह से पीस का कॉस्ट भूल जाते हैं, पीस का प्राइस भूल जाते हैं। बट वंस अगेन जिस दिन लड़ाई तुम्हारे घर के दरवाजे तक आ जाएगी ना, उस दिन न्यूट्रलिटी तुम खिड़की के बाहर फेंक दोगे। एंड दिस इज नॉट द ओनली पर्सन जिसके साथ ये हुआ है, जिसको रेप थ्रेट्स आ रहे थे डीएम्स में कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स से। देयर आर मोर पीपल जो कि मास रिपोर्ट कर रहे थे हर उस पेज को जो कि इनके अगेंस्ट बोल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से मास रिपोर्टिंग कराकर मेरे 3 अकाउंट्स बैन करा, लेकिन छोड़ूंगा मैं भी नहीं इनको। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान के बाद 3 अकाउंट्स, इमेजिन भाई। न्यूट्रल पार्टी does not give a damn about anyone or anyone's ideologies, just want to be the voice of Gen Z, just wants the good for this country, but cannot take criticism. अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। इस दल्ले को डेमोक्रेसी खतरे में लग रही है, पर अभिजीत दिपके कोई नॉर्मल जेंजी नहीं है। इसने तकरीबन 9 साल तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम किया है। 2018 से 2021 तक आम आदमी पार्टी के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस में था। 2021 से 2024 ये सब उड़ा चुका है वो अपने लिंक्डइन से, वायदा हुआ इस टाइम पे उड़ा चुका है। चोर की दाढ़ी में यूं तिनका होता है, अगर सच्चा था तो रखता इन चीजों को। अब भाग भाग के पोस्ट क्यों डिलीट कर रहा है भाई, क्यों अपनी हिस्ट्री उड़ाने की कोशिश कर रहा है। 24 तक मनीष सिसोदिया का कम्युनिकेशन एडवाइजर था और अब ये दल्ला यूएस बॉस्टन में रहता है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया आते ही ये गिरफ्तार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे गिरफ्तार क्यों होगा। 2019 में इसके ऊपर पुणे में एक केस दर्ज हुआ था जिसमें इसके ऊपर एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने का एलिगेशन था और आईएसआई के साथ लिंक बताकर पाकिस्तानी नैरेटिव इंडिया में चलाने का दावा किया गया था। ये सीएए और फार्मर प्रोटेस्ट में भी था, जहाँ पे ये अपने मुंह से जहर उगलता था। उमर खालिद सपोर्टर अभिजीत दिपके ट्विटर पे लगातार भड़काऊ ट्वीट्स करता था। अपोजिशन के साथ मिलकर ये वो करने की कोशिश कर रहा है जो बांग्लादेश और नेपाल में हुआ था। अभिजीत दिपके ने पार्टी बनाई यूथ की आवाज बनने के लिए, जनता की मदद करने के लिए, लेकिन जैसे ही फॉलोअर्स आने लगे वो अपने असली एजेंडे पे आ गया। उसने सेलेक्टिव बातें करनी शुरू कर दी है और अपोजिशन के सुर में सुर मिलाकर बातें कर रहा है। ये साला दल्ला खुद बॉस्टन में बैठा हुआ है और भारत की ग्राउंड रियलिटी पे अपना ज्ञान झाड़ता है। और अब इसके सपोर्ट में बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बड़े नेता उतर आए हैं जो अक्सर एंटी गवर्नमेंट बातें करते करते एंटी नेशनल बातें कर जाते हैं। खुद तो ये बाहर रहता है और भारत की यूथ को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन याद रख भारत का यूथ भारतीय है और वो तेरा भरता बना देगा दल्ले। Then there's this other account by another girl who posted this to all the members of the so-called Cockroach Janta Party. Just because I spoke about your leader Abhijit Dipke, I am being flooded with rape threats, sexually abusive messages and disgusting comments. I only shared what I knew, but the response I received was not disagreement, not criticism. It was threats against my body, my dignity and my safety. It is what your leader asked you to do. Is it how you defend your leader
by threatening a woman with rape. By the way, once again 50% reservation मांग रहे थे ये औरतों के लिए. ये हैं तुम्हारे revolutionary feminist लोग who really care about women and women's safety and their तरक्की in this world. You can disagree with me, you can criticize my opinion, but no woman deserves rape threats just because she spoke up. This is not politics, this is harassment, this is not ideology, this is वायलेंस. तो वंस अगेन ये जो इमोशनली चार्ज्ड होते हैं ना और उसके बाद उनमें कुछ वॉनबीज होते हैं जो इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए अचानक से एक मूवमेंट से जुड़ जाते हैं विदाउट इवन गिविंग इट अ सेकंड थॉट. वो लोग भाई प्लीज थोड़ा सा अपने ब्रेन सेल्स यूज कर लो, प्लीज थोड़ा सा. इनफैक्ट अभिजीत दिवके ने भी ये बोला है कि भाई मुझे थ्रेट आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे लोग गालियां बक रहे हैं, वो कह रहे हैं वो मुझे मार डालेंगे. तो उसके ऊपर भी तुम जरा देख लो सच्चाई क्या है. भाई मुझे तुम पहले ये समझाओ कि तुम्हें थ्रेट्स तो आ रहे हैं, बंदे का तुम नाम चेक करो, वारिश, ठीक है. अब तुम देखो नाम है मुस्लिम, तुम उसको ट्रू कॉलर पे चेक करो, वारिश हुसैन करके आएगा. भाई तुम खुद दिमाग लगाओ, एक मुस्लिम बंदा वारिश इसको धमकी दे रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर ले. कुछ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? भाई मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ बैठ रहा है. मैं तो कह रहा हूँ भाई बहुत ही क्रेजी मूवमेंट है भाई. इन्होंने सारी दुनिया को यूनाइट कर दिया. सेइंग हाई बिफोर अ डेथ थ्रेट. उसके बाद ये आदमी कुछ बातों को क्लैरिफाई करने के लिए और सवाल जवाब करने के लिए रचितू के चैनल पे लाइव आया है उसके साथ, और उसमें इसने क्या बोला ये देख लो. और देखो जो आ रहा है उस पर तुम लोगों को भरोसा ही नहीं है. देन वही चीज बोल रहे हो दैट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली. आप चाहते हो, आप जेंजी से चाहते हो कि जेंजी नहीं, देन तो यू आर टेकिंग सिंपैथी. लाइक आई मीन सी अभिजीत सर, इफ यू आर सेइंग दैट जो आता है उसको आप बिलीव नहीं करते, एक्चुअली में द होल थिंग इज दैट कि जेंजी क्वेश्चन करना स्टार्ट करे, यही है ना. तो हाउ लाइक हाँ, देन आप मेरे से एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि मैं आपको ट्रस्ट करूं. आप तो मेरे से एक्सपेक्ट करना चाहिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं. यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का 17 साल का स्टूडेंट कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम. आई मीन इट्स नॉट तुम्हारी, इट्स लाइक हमारी कंट्री आई गेस भाई. फर्स्टली लाइक ऑब्वियसली तुम्हारी कंट्री बोलेगा भाई, क्योंकि किन लोगों को सपोर्ट कर रहा था इस देश में रहते रहते वो तो सबने ही देख लिया. इसके लिए अपनी कंट्री होती तो क्या ये ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा होता जो असम को इंडिया से काटने की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा होता जो कश्मीर को इंडिया से अलग करने की बात कर रहे हैं. भाई कश्मीर इंडिया का था और इंडिया का ही रहेगा. तुम्हारा देश अपने आप को देश से भी अलग कर रहे हैं. ये अपने आप को जो देशभक्त बोलते हैं और देश के हित की बातें करते हैं, ये अपनी बातों में कहते हैं कि तुम्हारे देश में देखो क्या क्या हो रहा है. By the way, bro also jerks off to Dhruv Rathi's videos, just so you know. ध्रुव राठी के बारे में क्या सोचते हो आप? यार ध्रुव राठी के बारे में देखो लोगों का काफी ओपिनियन है, ठीक है. आपका क्या है? मुझे लगता है ध्रुव राठी के ऊपर ना इकोसिस्टम बटा हुआ है इक्वली. But we want to know your opinion. For example, because technically, like you know, आपके biasness जो है ना काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, like you know. तो what's your? I admire that guy for the kind of factual information he puts and. Factual information. ध्रुव राठी. अगर मैं कल एक पेज स्टार्ट करूं और मैं कहूं कि भाई मैं हूं न्यूट्रल आदमी, बट मुझे एल्विश भाई बहुत पसंद है. एल्विश भाई ने जो ध्रुव राठी के ऊपर एक्सपोजे वीडियोस बनाए थे भाइयों, उसमें बहुत ही फैक्चुअल बातें उन्होंने की थी, और मैं भी उनकी तरह एक दिन बिग बॉस की ट्रॉफी जीतना चाहता हूं. तो तुम मेरे चप्पल बजाओगे कि नहीं बजाओगे मुझे साफ साफ बताना. This is a fucking joke भाई. Why am I even wasting my time on this? भाई कॉकरोच जनता पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है भाई. जो काम इतने सालों से कांग्रेस और बीजेपी ये सब नहीं करवा पाई ना, इन्होंने भाई चुटकियों में 4-5 दिन के अंदर कर दिया. ये देखिए वीडियो भी प्रूफ भी है. देखो इन्होंने एआई की मदद से झाड़ू मार दिया, एआई की मदद से पोछा मार दिया, एआई की मदद से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ लिया, जीत भी लिया एआई की मदद से इन्होंने. अभी मेरी बात चल रही थी सीजेपी के पार्टी से, तो वो बता रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग का भी एक एआई बन रहा है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग भी जल्दी ठीक हो जाएगा. एक बात और चल रही थी कि ईरान और इसकी जो लड़ाई चल रही है युद्ध की, तो उसका भी एक एआई बन रहा है, तो उसकी भी एक वीडियो आ जाएगी एआई से. तो बस थोड़ा एडिटिंग की दिक्कत हो रही है बीच बीच में, क्योंकि एडिटर पैसे ज्यादा मांग रहा है. तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा जल्दी 5-6 दिन के अंदर. तो भाई ये है रियल काम करने की जब बात आ रही है तो ये एआई वीडियोस बना रहे. बकैती करवा लो, फुल बकैती करवा लो भाई. वो बोस्टन में बिठा के काम एक ना करना पड़ जाए. और ये जिन यंगस्टर्स को कॉकरोच बना के एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि वो सड़कों में झाड़ू लगा देंगे एआई वीडियो से मोटिवेट होके, उनकी मैं तुम्हें हरकतें दिखा देता हूँ. हम सिविक सेंस की बात करते हैं. यहाँ पे 10th के बच्चे थे जो जा रहे हैं मनाली के टूर में घूमने के लिए. मैंने उनको बोला कचरा उठाने के लिए, इनफैक्ट उनके सामने मैंने भी उठाया कचरा, है ना, उनको बताने के लिए, और बोला कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, इस तरह बिहेव नहीं किया जाता है. यही वो बंदे हैं जो आगे चल के इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे पोस्ट करने वाले हैं. मैंने ब्लेम नहीं.
अब पता है क्या होगा, अब ये जाएंगे खूब मस्ती मार के आएंगे और उसके बाद जब ये वापस किसी ट्रेन में बैठ के आ रहे होंगे और इन्हीं के जैसे गलीच लोगों ने ऐसा गलीच पना फैला रखा होगा वहां पे, तो ये उसकी वीडियो निकालेंगे और कहेंगे देखो सरकार काम नहीं कर रही, देखो भाइयों कोई साफ सफाई नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस देश में, जबकि खुद जहां जा रहे हैं वहां ये गू फैलाते घूम रहे हैं। 10वीं क्लास के बालक ये इंस्टाग्राम पे 24/7 ना रहते हो एक्टिव, ये हो नहीं सकता। ये ऐसे पेजेस को फॉलो करके रेवोल्यूशनरीज ना बनते हो, ऐसा हो नहीं सकता भाई। जब पर्सनल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की बात आ जाती है ना, तो 90% जनता पीछे हट जाती है। ना बराबर लोग हैं इस दुनिया में जो काम करके राजी हैं, जो उन रूल्स को वो दूसरों के लिए जो प्रीच करते हैं उनको खुद फॉलो करके राजी हैं। पर्सनल लेवल पे तो सबको करप्शन चाहिए, सबको घूस खिला के और चालान से बचना है, सबको घूस खिला के मंदिरों में एंट्री लेनी है, वीआईपी दर्शन करने हैं, पर इंटरनेट पे साला रेवोल्यूशनरी बना लो। पाल की मैम वाज अहेड ऑफ हर टाइम। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration. The German cockroach. This whole movement was bound to fail and bound to be trolled because भाई इस आदमी का 100% हिट रेट है भाइयों, शार्प शूटर है ये आदमी। इसने जिसको सपोर्ट किया है वो मिट्टी में ना मिल गया और ये हुआ नहीं आज तक। ये जिस मूवी को गाली बक देता है वो भाई साहब एकदम बढ़िया कमाई करनी शुरू कर देती है। ये जिस पार्टी को सपोर्ट कर देता है वो चाहे नई पार्टी हो, चाहे उसने 50 साल राज किया हो देश पे, तो ये आदमी भाई एक्चुअली अपनी साइड पे है। इसने अगर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है ना, तो समझ लो भाई ये कॉकरोचों को कोई भस्म होने से रोक नहीं सकता, खत्म है भाई ये पार्टी। ये कीटाणु कभी नहीं सुधरेंगे। इन कीटाणु ने पूरे रोड की ग्रिल तोड़कर लोहा निकाल कर बेच दिया। जब इनके पास चेकिंग करी तो देखो क्या क्या निकलता है। आपको पता है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने 352 करोड़ दिए इन रोड्स के लिए, पर कीटाणु ने सब बेचकर खा लिया। एक कॉल पर इधर के एमएलए अजय मावर जी ग्राउंड पर आ गए, फिर उन्होंने जो एक्शन लिया भाई, कीटाणु इधर से उधर भाग रहे थे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी एक्शन मोड पर है तो उनके एमएलए पीछे कैसे रह सकते हैं भाई। पहले पुलिस आई, इन कीटाणुओं को उठाकर ले गई, उसके बाद एमसीडी आई, उन्होंने इनका सारा टिड़ीजाम हटा दिया। ये कीटाणु इधर बैठ के कभी लड़कियों का फोन छीन देते तो कभी आने जाने वाली कार के सामने कूद के उनसे पैसे ऐंठते थे। अब कुछ बड़े कीटाणु कमेंट्स में ये लिखेंगे भाई ये गरीब लोग हैं, लोहा बेचकर पेट नहीं भरेंगे तो कैसे भरेंगे, और देश में इतनी बेरोजगारी है। मैं आपको बता देता हूँ ये लोहा जो चुराते हैं ना, ये बड़े कीटाणुओं के पास ही जाता है। इस लोहे से बड़े कीटाणुओं को घर चलता है। मैं आपको बता दूं ये सीधा सीधा देश से गद्दारी करते हैं। इन कीटाणुओं को बीजेपी से इतनी नफरत है, बीजेपी ने जहां जहां काम करा है ना, इन लोगों ने वो चुरवा दिया या वो तोड़वा दिया। ये लोग बीजेपी से नफरत करते करते शायद अपने देश से नफरत कर रहे हैं या देश से ही नफरत करते हैं। जितना भी लोहा चोरी हो ना, इन सब के पीछे बड़ा कीटाणु होगा जो कबाड़े का काम करता है। आप लोग कमेंट्स में ये जरूर बताना इन कीटाणुओं को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और आपके इलाके में भी ऐसे कीटाणु है ना तो भाई कमेंट्स में जरूर बताओ, उनको भी भगाते हैं। तो भाई इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं देश में। मैं कहता हूं, मैं एक बार को मान लेता हूं कि आपके सारे फॉलोअर्स जेन्युइन हैं, ऑल्दो अगर 22.5 मिलियन लोग या 23 मिलियन लोग भी आपके पूरी पॉपुलेशन के मैं देखूं तो बस 1.4% बनते हैं, ये मिलके क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे? और आप तो बॉस्टन में बैठे हुए हो, आप ग्राउंड लेवल पे क्या ही काम ऐसा कर दोगे जिससे ये चीजें देश में ठीक हो जाएंगी? माय पर्सनल ओपिनियन इज यू कैन नॉट, दीज थिंग्स आर नॉट एज सिंपल। मैं तुम्हें और ऐसे वीडियोस दिखा देता हूँ भाई। आम आदमी पार्टी की बसाई हुई झुग्गियां, जब इधर तलाशी ली तो इधर हथियार मिलते हैं, और नशा तो इधर खुलेआम चलता है। वैसे तो ये झुग्गियां आम आदमी पार्टी से पहले की हैं, पर बिजली का मीटर, पानी सब कुछ आम आदमी पार्टी ने दिया, मतलब इन्हें पक्का कर दिया। इधर रहने वाले कॉकरोच कीटाणु आप जैसे लोगों पर हमला करते थे और आपके बच्चों को लूटते थे। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा। इस झुग्गी पर मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी और आज इसका हाल देखो, पूरी खत्म हो गई, क्योंकि ये झुग्गी पूरी की पूरी इलीगल थी। कॉकरोच के भाई बंधु कीटाणुओं ने इन्हें बसाया था, इधर पक्के मीटर लगा दिए थे। ये हाल करा था आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का। और इधर की एमएलए है आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी। इन्होंने झुग्गी तो बसाई और खुद ने भी रोड पर कब्जा कर लिया और साथ में लोगों को भी करवा दिया। अब ये सब मकान टूटेंगे, झुग्गियां टूटेंगी। मीडिया को दिखाने के लिए कुछ इस तरह खाना बनाया जा रहा है, पर रियलिटी ये है, अंदर चिकन बनाया जा रहा है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सच पता चलेगा। इस झुग्गी के साइड में मेट्रो भी है, कॉलेज भी, और क्या पता ये झुग्गी वाले कॉलेज के बच्चों पर हमला करते हैं कुछ पैसों के लिए। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने तो शालीमार बाग को कॉकरोचों से भर दिया, तब ये कॉकरोच यहाँ से भगाए जा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन पार्टी बना रहे हैं अपनी। भाई कॉकरोच ने तो भाई देश बर्बाद कर दिया हमारा।
ये है कॉकरोच पार्टी के सपोर्टर। देख रहे हो आप कैसे नशेड़ी गंजेड़ी रहते थे इन झुग्गियों में, कैसी गंदगी करके। इन कॉकरोचों ने तो एक धंधा बना लिया था, आए दिन इनके बच्चे लोगों की गाड़ियों के आगे आ जाते थे, फिर ये लोग उन लोगों से पैसों की मांग करते थे। पहले आप ये सुनो। लिक्विड सिलोचन क्या होता है उससे? नशे में जन्नत में घूम जाओ, बात करता हूँ। आप मर्डर आम आदमी पार्टी इतने यंग बच्चे पे हाफ मर्डर का केस लगा हुआ। एंड अ गाय सिटिंग इन बॉस्टन स्टार्ट्स अ पेज जो कि मैं मान लेता हूं कि सारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, जो कि हैं नहीं। वो सोच रहा है कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सही कर देगा, रातों रात चेंज आ जाएगा। वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी सरकार आए तो करप्शन एकदम खत्म हो जाए, उस सरकार से जुड़े हुए लोग, उसके सारे मंत्री एकदम क्लीन हो, और जो भी काम किया जाए उसमें किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी का भी घर ना उजड़े, कोई भी सरकार को गाली ना बके, सब सरकार के हित में ही बोले। तुम्हें लगता है ये लोग डिजर्व करते हैं सिंपैथी? तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है आसपास के लोगों की लाइफ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए, मेट्रो में आते जाते लोगों के लिए? तुम्हें साफ देश चाहिए, पर तुम ये नहीं समझते कि उस सफाई को करने के लिए तुम्हें गंदगी में उतरना पड़ता है। किन लोगों की सपोर्ट लेके तुम ये पेज चला रहे हो भाई? और बात रहेगी पढ़े लिखे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ डिग्री होल्डर्स कैसे हैं इस देश के। शायद तुम भूल गए हो आज से कुछ साल पहले की न्यूज, जहां पे बिहार में खुले में चीटिंग हो रही थी। लाउड स्पीकर्स पे क्वेश्चंस के आंसर्स को बोला जा रहा था जिससे बच्चे चीटिंग करके एग्जाम पास कर पाएं। खिड़कियों में लोग कुंजियां लेके खड़े हुए थे। शायद तुम भूल गए हो कि फ्रॉड लोग इस देश में कितने कॉमन है, जो कि अपनी गलती ना देख के और अपने आप को ना सुधारने की जगह बस और बस दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने में, सरकार को गाली बकने में विश्वास रखते हैं। मैंने ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, नौकरी के फॉर्म भरे तो मोदी सरकार आ गई, तब से हम घर बैठे हैं। ग्रेजुएशन कर रखी? हाँ, ग्रेजुएशन की कौन सा क्या है? क्या एएनएम की है मैंने। एएनएम किया? हाँ। अच्छा, उसका फुल फॉर्म बताइए। एएनएम की अरे किसी को अपनी माँ का नाम नहीं पता, किसी को अपनी डिग्री की फुल फॉर्म नहीं पता, पर उसने कर रखी है भाई, वो डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर है वो। यूपी से की है मैडम मैंने। अरे ठीक है, कहीं ये लो भाई, हर फ्रॉड में यूपी बिहार का ही नाम होता है। ये से भी किया, दुनिया में किसी कोने से किया, उसका फुल फॉर्म लागू करो, लेकिन उसके अंदर ओबीसी और एससी/एसटी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करो। मैडम ठीक है। राहुल गांधी अभी किस पद पे है? मैडम राहुल गांधी सबकी सेवा के पद पे है। किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी के किस पद पे है? इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने, किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी ग्रेजुएट है ये औरत, डिग्री है इसके पास। ये क्या कह रही है, इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने कि मुझे ये पता हो कि राहुल गांधी किस पद पे है। की कितनी सीटें हैं? ये भी नहीं पता। महिलाओं को कितना आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था? मैडम ये भी नहीं पता मुझे कितना आरक्षण दिया। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? हमें भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। नहीं पता, फिर भी आप यहाँ पे मैम ज्ञान देने आ गई। मैंने अब एक काम कीजिए, आप कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीक्षित जी, आप जरा इनको काम दिलवाइए, आप इनकी नौकरी लगवा के दिखाइए। ब्लेम द सरकार, मैं आपके साथ हूं। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो, 80% रिजर्वेशन लेके आओ प्राइवेट नौकरियों में और इन लोग से देश चलवाओ। मैं भी देखता हूं ये देश कितने दिन चलेगा। जिस दिन बर्बादी के रास्ते पे आ जाएगा ना ये देश, और तुम हर सुबह उठ के ये सोचोगे काश ऐसी स्टूपिड मूवमेंट्स का हिस्सा हम ना बने होते, उस दिन तुम्हें समझ आएगा तुम क्या बेवकूफी करने चले हो। Predicted about cockroach Janata Party way long back. Democracy basically means government by the retarded, for the retarded, of the retarded. 2011 का आपको अन्ना हजारे मूवमेंट तो याद ही होगा, जहाँ सारे 90s बॉर्न ये रिलेट कर पाएंगे कि हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में खुल करके इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। कॉरिडोर से लेकर सड़कों में निकल कर हमने जोर जोर से चिल्लाया था कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिना सोशल मीडिया के बैक देन इट बिकेम ए ह्यूज रिवॉल्यूशन। लोगों को लगा अब सच में चेंज आएगा, बट हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पीपल गॉट चीटेड। और वही लोगों से अगर आप पूछोगे कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हो, देन मोस्ट ऑफ अस विल से कि ये कुछ नहीं, सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि ये सच में मजाक ही है। तो अब हमारा नेक्स्ट
फिक्स टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। एंड दिस प्रूव्स ओशोस पॉइंट कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं सिर्फ एक इल्यूजन है, जहां लोग बिलीफ और इमोशंस पे चलते हैं, सोचते कम है और इसीलिए एंड में फ्रस्ट्रेटेड रह जाते हैं। ट्रस्ट मी, वी हैव गॉन थ्रू दिस एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर इस कॉकरोच पार्टी से अगर सच में किसी को फायदा होगा तो वो सिर्फ इस इंसान को, एंड रेस्ट ऑल ऑफ यू विल अगेन एग्जैक्टली। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड रील टू एंड दिस वीडियो ऑन। कोई कितना भी कहे कि भाई मैं बहुत ही रैडिकल विचारों का इंसान हूं, बट मेरा भी यही मानना है कि डेमोक्रेसी एंड 100% डेमोक्रेसी इज अ कर्स टू एनी सोसाइटी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश जहां पे लोगों में बेसिक चीजें समझने की अकल नहीं है और इस तरीके की हरकतें हो रही हैं रोड साइड्स और स्लम्स में, आप लोगों को वोटिंग राइट दे के सरकारें चुनने की पावर नहीं दे सकते। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी दैट वी लिव इन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। सो यप, आई होप यू लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस long ass boring video and I will see you brothers in the next one. Peace.